میں رونما ہونے والے فرقے وارانہ فسادات میں 60 سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر اب تک کیمپوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے دعویٰ کیا ہے کہ اقلیتوں کی فلاح و بہبود پر ان کی حکومت نے مرکزی حکومت سے زیادہ بجٹ دیا ہے۔ لکھنؤ میں صوفی بزرگ دادا میاں کے مزار پر حاضری دینے پہنچے وزیر اعلیٰ نے چادر چڑھا کر اپنی عقیدت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے قومی یکجہتی اور آپسی بھائی چارے کا پیغام دیا۔ اور جہاں دادا میاں کی مزار پہ ہم لوگ کھڑے ہیں، دادا میاں کے ماننے والے لوگوں کے بیچ میں جب ہم لوگ ہیں تو یہاں سے جو سندیش جاتا ہے کہ سمپردائک طاقتوں کو روکنا ہے اور جو بھائی چارہ ہے، جو انسانیت اور جو مانوتا کو آگے بڑھائے، کیونکہ سبھی دھرموں کا یہ ماننا ہے کہ مانوتا سے اور آپس میں پریم بڑھنے سے سماج مضبوط ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سندیش اس جگہ سے ہمیشہ دیا گیا ہے۔ دیکھیں، جہاں وکاس کی بات ہے، وکاس سے ہم لوگوں نے جوڑا ہے اور مہتوپورن یوجنائیں چلائی ہیں۔ کسی بھی یوجنائیں میں آپ اگر جانکاری کریں گے تو بھاگیداری برابر دی ہے۔ پہلی سرکار ہے جس میں الپ سنکھیک خاص کر مسلم سماج کو وکاس سے جوڑنے کا کام کیا ہے، جہاں اور سرکاریں کیندر کر رہی ہے لیکن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں۔ میں اس موقع بھی ضرور کہہ سکتا ہوں جو کیندر کا بجٹ ہے الپ سنکھیک وبھاگ کا، اس سے کئی زیادہ بجٹ اتر پردیش کی سرکار نے دیا ہے۔ کیندر سرکار دے رہی ہے دیش کو، اتر پردیش دے رہا ہے کیول اتر پردیش کے لوگوں کو۔ آل انڈیا مدارس عربیہ ٹیچرز ایسوسی ایشن نے حکومت اتر پردیش پر مدرسوں سے کیے گئے وعدے پورے نہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ٹیچرز ایسوسی ایشن نے لکھنؤ کے اجلاس میں اپنے مطالبات دہرائے۔ ان کے مطابق حکومت نے مدرسوں کا ایک اجلاس بلایا ہے، اس میں وزیر اعلیٰ اتر پردیش اور اقلیتی بہبود کے وزیر محمد اعظم خان کی شرکت متوقع ہے۔ یہ اجلاس 28 جنوری کو ہو رہا ہے۔ احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ صرف وعدوں سے کام نہیں چلنے والا، اسے کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ حکومت کا جو اجلاس ہے وہ سرکاری اجلاس ہے، ان کے ذریعے جو لوگ بلائے گئے ہیں، جن لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے، دعوت دیا گیا ہے، وہی لوگ آئیں گے اور ہمارے ایسوسی ایشن کے جو مسائل ہیں وہ چیزیں مکمل طور پر وہاں اٹھ پائیں گے کہ نہیں اٹھ پائیں گی، چونکہ ضلعی اجلاس ہمارا ہے اور ضلعی یونین کے مادھیم سے ہم اپنی مانگ جو ہے وہ حکومت کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایسوسی ایشن آل انڈیا ٹیچرز ایسوسیشن مدارس عربیہ کا اجلاس ہے، نہ کہ حکومت کا اجلاس ہے۔ جو 2 سال میں ابھی تک بہت سی چیزیں ہم لوگ جو حکومت سے مانگتے آئے وہ اب تک پوری نہیں ہوئی، تو نمبر 1 تو اس کو کل طے کر لیا جائے۔ جیسے 150 مدرسوں کو انہوں نے کہا تھا، اب تک کوئی مدرسہ نہیں گرانٹ پر آیا کہ 75 مدرسہ ادھر اور 75 مدرسہ ادھر 2014 کے بعد، تو اس بات کو بھی رکھنا ہے کہ کل جو اجلاس ہو رہا ہے، جو لوگ اس کے منتظمین ہیں، ناظمین ہیں، ان پر اخبارات کے ذریعے سے، آپ کے ای ٹی وی کے ذریعے سے یہ بات باور ہو جائے کہ اساتذہ میں بے چینی ہے۔ وہ آج جو یہاں آ رہے ہیں وہ یقیناً اس طرح کے وعدے لے کے نہیں جائیں گے بلکہ مثبت اقدامات لے کے جانا چاہتے ہیں یہاں سے۔ ترنمول کانگریس مغربی بنگال میں 30 جنوری کو ہونے والی بریگیڈ ریلی سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرے گی۔ امکان ہے کہ اس ریلی میں وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی لوک سبھا انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے نام کا اعلان کریں گی۔ مسلمانوں کو امید ہے کہ ممتا بنرجی ان کے لیے کوئی بڑا اعلان کر سکتی ہیں۔ اس ریلی میں مسلمانوں کی بڑی تعداد کی شرکت متوقع بتائی جا رہی ہے۔ تو ایکچولی وہ تو ہمارا لیڈر سپریمو جو ہے ممتا بنرجی اعلان کریں گے۔ ہو سکتا ہے مسلموں کے لیے کوئی نیا چیز وہ اعلان کرے، ہم لوگ امید کرتا ہے جو مسلمانوں کے بارے میں سوچے اور مسلمانوں کا ویٹیج دے۔
हमारा जो डिमांड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, वो इशू लेकर ममता बनर्जी थोड़ा सोचे। ये हम मुस्लिम आवाम ये चाहते हैं। नारा इलेक्शन का पहले तो अभी तो क्या मुस्लिम का लिए कोई इकोनॉमिक पैकेज हो सकता है, मगर कहते हैं कुछ ना कुछ करेंगे, माने कुछ डिक्लेरेशन करेंगे, नया डिक्लेरेशन जो कर सकते हैं। तो अक़लियतों की फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म के 15 नुकाती प्रोग्राम में असातिज़ा की तक़र्रुरी के मामले में मरकजी हुकूमत की लापरवाही का इंकशाफ हुआ है। हक़ जानकारी के जवाब में हुकूमत ने यह एतराफ़ किया है कि उसकी तशहीर के लिए सालाना 50,000 रुपये मुख्तस किए गए, लेकिन पिछले 2 साल में तशहीर पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। कि प्राइम मिनिस्टर के 15 पॉइंट जो प्रोग्राम है, उनमें प्रोग्राम नंबर 3 हिंदुस्तान भर में उर्दू टीचर्स रखने के बारे में बात करता है कि अगर कहीं भी जरूरत होगी तो प्राइम मिनिस्टर के फंड से उनको तनख्वाह दी जाएगी। इस 30 पॉइंट नंबर 3 की तशहीर के लिए, पब्लिसिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50 लाख रुपया साल एलोकेट कर रखा है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए। लेकिन आरटीआई से पता चला है कि पिछले 4 साल में एचआरडी मिनिस्ट्री ने और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसकी पब्लिसिटी का आने वाला 2 करोड़ रुपया ही खर्च नहीं किया, 1 रुपया खर्च नहीं किया। तो जब पब्लिसिटी पर ही खर्च नहीं किया, किसको पता चलेगा और कैसे आप ईमानदार साबित होंगे कि आप बाकी स्कीमों पे आप अमल करा रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट और जेडीयू लीडर साबिर अली ने 15 नुकाती प्रोग्राम के मामले में हुकूमत की मंशा पर ही सवाल उठाया है। उनका कहना है कि जब मरकज की नीयत ही साफ न हो तो रियासतें क्या कर सकती हैं। सिर्फ किसी एक सरकार को जिम्मेदार ठहराना दुरुस्त नहीं है। स्टेट को जो भारत सरकार चाहती है, मामला जो साफ साफ होते हैं, उनके जहन साफ होती है, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को की जो जहनियत है इस मामले में साफ नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम। हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है, जिसे सेलिब्रेट किया जाए। मिलादुन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پارلیمانی انتخابات کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں. اس سلسلے میں کانگریس نے ناندیڑ میں پارٹی کارکنان کا علاقائی اجلاس منعقد کیا. اجلاس کے دوران انتخاباتی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. اجلاس سے خطاب کے دوران سابق وزیر اعلیٰ اشوک چوہان نے مراٹھا ریزرویشن کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیتے ہوئے مراٹھا ریزرویشن کے لیے جدوجہد کرنے کی بات کی. اجلاس کے اختتام پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مسلم ریزرویشن سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب کچھ اس انداز میں دیا. आणि मुनीर बालू समय दोन्ही विषय आयरणीवर असल्यामुळे मी त्याच्यावर भाष्य केलेलं आहे. मुस्लिम आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये अद्याप शासन स्तरावर काय हालचाली याची मला अद्याप माहिती नाहीये, परंतु ही मागणी जस्टिफाईड असेल. مجلس اتحاد المسلمین بھی انتخابات کی تیاریوں میں جٹ گئی ہے. کوآپریشن میں مسلم دلت اتحاد کی کامیابی کے بعد اب MIM اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات میں بھی اسی اتحاد کو دہرانے کا منصوبہ بنا رہی ہے. اس سلسلے میں 30 مارچ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. اس ضمن میں MIM اور بھارت بہوجن مہاسنگھ کی ابتدائی گفتگو ہوئی. آئندہ میٹنگ میں MIM کے مہاراشٹر انچارج سید معین اور بھارت بہوجن مہاسنگھ کے صدر پرکاش امبیڈکر کی ملاقات متوقع ہے. सध्या लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आलेल्या आहेत. त्या दृष्टीनं आम्ही MIMचे राज्यस्तरीय अध्यक्ष सय्यद मोईन साहेबांना भेटण्यासाठी आलो होतो आणि राजकीय दृष्ट्या आमची युती होण्याच्या संबंधात थोडी बहुत चर्चा करण्याची इच्छा आहे. त्या दृष्टीनं आम्ही नेमकंच प्रायमरी स्टेजला आहोत. इथून पुढे आणखी काही बैठका झाल्या त्याला काही स्वरूप जर आलं तर उद्या आपल्याला नक्की कळेलच. इंशाल्लाह एक ऐसा जो है सो उसमें रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे कि जिसमें MIM का भी फायदा हो और भारिप बहुजन के साथ अगर युति होती है तो उसका भी फायदा हो. और एक नया जो है यहाँ पर जो पॉलिटिक्स में जो आजकल जो चल रहा है कि भाई मनमानी का जो सो माहौल बन चुका है, तो वो माहौल को खत्म करने की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे. और मुस्लिम और दलित भाई जो है सो मिलकर एक नई पार्टी के तौर पर दोनों मिलकर जो है सो ऐसे हमारे कैंडिडेट्स को आगे बढ़ाने की हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे. आर्ट पेंटिंग की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाले बड़ौदा के फनकार प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शेख ने पद्म भूषण अवार्ड मिलने पर खुशी का इजहार किया. बड़ौदा की MS यूनिवर्सिटी से वाबस्ता प्रोफेसर शेख ने पेंटिंग के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी. उनके फनपारों की नुमाइश दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम और अमेरिका के एसेक्स म्यूजियम में लग चुकी है. 80 में मुझे पद्मश्री मिला था और अभी 30 साल के बाद पद्म भूषण मिल रहा है. ये तो सौभाग्य की बात है कि हमारा काम राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया है. उससे खुशी तो होगी. सर किसे इनायत करना चाहेंगे, किसको अर्पण करना चाहेंगे? अभी जो मैंने अपनी जिंदगी के 60 साल में जो काम किया है उसमें जिन जिन लोगों का, एक तो जिनसे मैं सीखा हूं जो मेरे गुरु थे, और दूसरा कि जिन लोगों ने मुझे सहयोग दिया है, जिस लोगों ने मेरे साथ काम किया, मेरी पत्नी ने भी साथ दिया है. तो ये जब ऐसे कोई पुरस्कार मिलते हैं तो मन में हमेशा उनकी छवियां उभर के आती है. तो अगर कुछ भी कहीं पर देना हो किसी को तो इन्हीं को ही दे सकते हैं. मध्य प्रदेश में यौम जमहूरिया के मौके पर मुख्तलिफ शोबे में नुमायां काम अंजाम देने वालों को
ایوارڈ اور اعزاز سے نوازا گیا۔ اس بار اردو ادب میں کارنامہ انجام دینے کے لیے شاعر اور ادیب چندربھان خیال کو اقبال ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ واضح ہے کہ چندربھان کی کتاب لولاک کے لیے انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ لولاک سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل کتاب ہے۔ राष्ट्रीय तुलसी एवं पारिवारिक कलाओं के क्षेत्र में सम्मान अलंकरण प्राप्त कर चुके हैं। अग्रसेन सम्मान से विभूषित हो रहे सरकार का ये आयोजन वाकई काबिल मुबारकबाद और काबिल तारीफ है। और मुझे जो इकबाल सम्मान दिया गया है उसकी जो खुशी है तो फख्र महसूस कर रहा हूँ। और वो फख्र इसलिए भी कि मेरा ताल्लुक भी मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश में मैंने अपने घर में मुझे सम्मानित किया गया है तो ये और बड़ी खुशी की बात है। दुनिया जानती है कि याकूब मोहम्मद से बड़ी शख्सियत नए जमाने में कभी पहले पैदा हुई थी और न उनके बाद कभी कोई पैदा हुई। उन्होंने बहुत कम मुद्दे में एक जाहिल माशरे को मुहज़्ज़ब बना दिया। ऐसा मुआवजा शायद ही किसी और दूसरे बड़ी शख्सियत ने किया हुआ। दुनिया में बहुत से ऋषि मुनि विद्वान दानिश्वर आलिम फाजिल और संत फकीर पैदा हुए हैं, लेकिन जो बात जो कमाल और जो अज़मत रसूलुल्लाह को हासिल है किसी को नहीं हासिल है। कर्नाटक के मारूफ तालीमी इदारे अल अमीन कॉलेज ने तालीम के साथ रोजगार के तस्वुर को फरोग देने के लिए इवनिंग पीयू कॉलेज की बुनियाद डाली है। अल अमीन कैंपस में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन नंदन नीलाकनी के हाथों इस कॉलेज का इफ्तिताह अमल में आया। अल अमीन के तालीमी इदारों की फहरिस्त में एक और इदारे का इजाफा हुआ है। बेंगलुरु में अल अमीन के कैंपस में इवनिंग पीयू कॉलेज की बुनियाद डाली गई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन नंदन नीलेकनी ने इस कॉलेज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अल अमीन इदारे की खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि नौजवानों के लिए मौके पैदा करने की जरूरत है। If we can create opportunity for everyone, for every Salma, every Shaheen, if we can create opportunity, then we will make this country a great country. And that's what my dream is. That's what I hope to do. I want to follow in the footsteps of Dr. Khan. He has spent 50 years of his life creating great institutions and giving lakhs and lakhs of young people an opportunity. He has created colleges and schools and the sports facilities which has allowed the main people in India's hockey team to come from Al Amin. So there's something remarkable that has happened here. But the most important institution we should concentrate is the 11th and 12th standard. These 2 years in a boys and a girls age, 16 to 18, are very important. If a student in this age, that is 16 and 18, works hard, becomes successful, entire life he can be happy. आइंदा तालीमी साल से इवनिंग कॉलेज की क्लासेस शुरू होंगे। शाम 6 से 9 बजे तक ख्वाहिशमंद तलबा आर्ट्स और कॉमर्स शोबे में दाखिला ले सकते हैं। ईटीवी न्यूज बेंगलुरु। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे।
चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्सर रसोई पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ETV की नजर। देखिए ETV उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद के हर फन और हर मौजू पर बेशुमार तसनीफात और तालीफात का जखीरा मौजूद है। ताहम मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी ऑफ द होली कुरान अपनी नौयत की मुनफरिद और मुमताज पुरानी डिक्शनरी है। उर्दू के सहाफ़ी ज़मीर अहमद मुज़मिर की तालीफ करदा मल्टीलिंगुअल डिक्शनरी ऑफ द होली कुरान अपनी नौयत की मुनफरद मुमताज कुरानी डिक्शनरी है। ये अहले इल्म, अहले अदब, मुब्तदी और रिसर्च स्कॉलर यहाँ तक के मदारिस के तालिब इल्मों के लिए भी मुफीद साबित होगी। दो मिसाल जो है कुरान पाक के जो हरूफ हैं ये किस चीज में इस्तेमाल हुआ, कितनी जगह इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक का, ये हर कहीं 50 जगह, कहीं 55 जगह, कहीं 53 जगह, इस तरह से कहीं इतनी तहकीक किसी ने नहीं किया। और कहीं ने सिर्फ ऐसे ही तर्जुमा कर दिया, लेकिन इन्होंने तर्जुमा ही पे यकफी नहीं किए, जो है किफायत नहीं किए, बल्कि उसकी जो है तहकीक की है कि लफ्ज कहाँ कहाँ आया है कुरान पाक में, वो सब कुछ लिखा है उसमें। तो ये बात हमको बहुत पसंद आई है। डिक्शनरी की खास बात यह है कि कुरान करीम में बाज अल्फाज मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुए हैं और मौलिफ ने डिक्शनरी में उन तमाम मानी का सियाक व सबाक के एतबार से इहाता किया है। इस डिक्शनरी में अरबी से उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, फारसी और बंगला जबान में भी अल्फाज के मानी मौजूद हैं। बिल्कुल मुनफरिद डिक्शनरी है, ऐसी डिक्शनरी आज तक नहीं आई थी। मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से इस डिक्शनरी से इतनी मदद लेता हूँ कि मुझे अंग्रेजी का भी मिल जाता है, उर्दू का भी, पर्शियन का भी मिल जाता है। बहुत ही खास तौर से कुरान शरीफ के माना को समझने वालों के लिए और रिसर्च करने वालों के लिए तो ये डिक्शनरी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें मैंने कोशिश की है कि एक लफ्ज़ कुरान करीम के मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल हुए हैं और मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल हुए हैं, मैंने उन तमाम मानी का अहाता किया है इस डिक्शनरी में। फॉर एग्ज़ाम्पल लफ्ज़ हमीम 17 जगह आया है कुरान में, जिसमें 9 जगह बॉइलिंग हॉट वाटर के मानी में है, यानी खौलता हुआ गर्म पानी के मानी में है, और 8 जगह जो है गर्म जोश दोस्त के मानी में है। इसी तरह लफ्ज़ उम्मत 49 टाइम्स आया है कुरान करीम में, जो मैंने 4 मानी इसमें लिखे हैं। एक मानी जमात और गिरोह के हैं, दूसरा मानी मुद्दत के हैं, तीसरा मानी पेशवा वगैरह के हैं। 723 सफ़हात पर मुश्तमल डिक्शनरी को तैयार करने में 17 बरसों की मेहनत लगी है और अब इस डिक्शनरी का तीसरा एडिशन शाये हो चुका है। चौथा एडिशन कश्मीरी जबान के इजाफे के साथ जल्द ही मंजर आम पर आएगा। ETV न्यूज, नई दिल्ली। रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में 5वां ग्रेजुएशन प्रोग्राम मनाया गया। इस तकरीब में वाइस एडमिरल शेखर सिंह और कॉलेज के प्रिंसिपल फादर निकोलस टेटे ने मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तकरीब में 29 टॉपरों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया और 2000 से ज्यादा तलबा को डिग्रियां तफवीज की गईं। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके, वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके, आईना क्या मजाल तुझे
आईना क्या मजाल तुझे मुंह दिखा सके। हर सुबह ईटीवी उर्दू की खुशबू से महके आपका घर आंगन। मांगने वाले मांग खुदा से। रूहानी कैफियत से सरशार कव्वालियों का हसीन गुलदस्ता। प्रोग्राम महफिल समा रोजाना सुबह 4:30 बजे। कुरान हमें एक बहुत बड़ी चीज देता है, वो है करेज, हौसला। पुर उम्मीद जिंदगी का सफर। प्रोग्राम रहनुमाए जिंदगी हर पीर का जुमेरात सुबह 5 बजे। तिलावत कुरान मा तर्जुमा प्रोग्राम फरमाने इलाही हर जुमाता इतवार सुबह 5 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से नमाज फजर के रूह परवर मनाजिर। प्रोग्राम नमाज फजर रोजाना सुबह 5:30 बजे। प्रोग्राम नवाए सरोज रोजाना सुबह 6 बजे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ईटीवी उर्दू बहारे सुबह। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में ऐसा दिन आए, मेरे अल्लाह ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाजिर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
نعت